Welcome to a new episode of IB Today podcast, Let's Talk. This is your host Mohammad Afan, and today we are doing a special episode regarding the youth and their mindset. And for that special episode, we got a guest who was an host himself. मैंने उनको इसलिए बुलाया है कि पहले एक तो मैं उनसे सीख सकूं कि होस्टिंग कैसे करते हैं पॉडकास्ट, क्योंकि मैं समझता हूँ अभी भी आई एम स्टिल यंग एंड अभी भी टाइम है सीखने के लिए. और इसलिए भी बुलाया ताकि you could learn as well from him and his guidance and his experience as well. He has a bachelor degree in computer science. He has an MBA. He has a major in HR. He teaches in various universities. And पता नहीं और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं भूल चुका हूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली आप सुन सकेंगे उनसे उनके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से. तो मिस्टर बजरुद्दीन, हाउ आर यू? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm good, alhamdulillah. So, Mr. Baji, let's talk about, yourself, right? How did you get into what you're doing right now in media in general? So, how did that happen? You have so many degrees and you have an alim degree as well. So, how did you get into what you're doing right now with Youth Club? I think it had more to do with being able to convey a message in the most effective manner. I was part of debate and speech competitions since my school time, but especially when I got into the Dawah field after my teaching career. So it allowed me to be able to communicate with the youngsters on a whole new level. So to be able to reach the masses and be able to let them know that, it's possible for you to be able to practice your religion regardless of whichever field you're in. Yeah, I completely agree, because, religion is part of, our life, how we live our lives, and that's according to whatever we do, religion is part of our life. Let's talk about Youth Club and how did that come about? Youth Club was basically a dream. Since it was actually started by sisters in 2011. A lot of people don't know about it because I think they were able to get to know and be familiar with Youth Club after the whole media reach which Youth Club has been able to acquire. They were able to know Youth Club on a whole different level, but the way they started was it was basically started by sisters, and then Islamabad team took over, Raja Zia took over, and we were able to conduct lectures at different universities, and it was a fun-filled activity with some serious message, some critical thinking, as well as having fun activities, giving the youngsters a message that work on your mind, body and soul. That's basically our basic goal. Mind, body and soul, that's what we want to work towards. And alhamdulillah, we've been able to reach out to a lot of people, not just in Pakistan but internationally as well. So Youth Club was basically a dream that no youngster should be allowed to suffer with the stereotype image of religion and be deprived from being able to practice religion, thinking that if they're a college student they have to be able to leave it. No, you can practice it. In fact, you can become a big source of dawah in your own university. If you're in a sports field, you can do that. If you're in a professional field, you can practice your religion. All these elements, combined, make up a power-packed Muslim identity and representing Islam 24/7. So, but it has to be with knowledge. So we focus on mind and enriching the youngsters with the knowledge they need to acquire to be able to make the right decisions, to be able to work towards the body and also work towards your health side, and of course the spirit side. Tazkiyah, the purification has to be there as well. Right. So, with the Youth Club, what activities you have been doing, that's phenomenal. I've heard from Raja Ziaulak and all these people who have been, doing a lot of good work and dawah and it's inspiring for all the youth there. It's not like, you can see dawah happening around us. So let's talk about, youth and their mindset, since Youth Club is basically about that. So, I've sent you a couple of questions, but let's go out of those questions in general. So, I wanted to talk about relationship in general, and in relationship in general about friends in general. आप, एक कहा जाता है कि, आप अपने दोस्त के दीन पे होते हैं. So, friends play an important role in whatever life you do and whatever activities you get involved with. So, how do you think about what your intake is on friendship in general? क्या impact लाता है youth के लिए? कि how आपकी surrounding पे क्या फ़र्क है? जैसे आपने हदीस कोट की अलमरउ अला दीनी खलीलिही, दैट अ पर्सन इज़ अपॉन द रिलीजन ऑफ हिज फ्रेंड. आई थिंक जैसे आपने शुरू में मुझसे पूछा था रिगार्डिंग हाउ आई गॉट इनटू दिस, सो आई वाज ऑलरेडी डूइंग दिस ऑन इंडिविजुअल लेवल बिकॉज ऑल माय इयर्स व्हेन आई वाज टीचिंग, व्हेन आई वाज कम्युनिकेटिंग विद द यूथ and personally going through it myself,
you know, आप जिंदगी में शायद अपने 20s को एक ज़ाया कर देते हो, you know, not just ज़ाया, but you know, you feel that you haven't done enough, and then you start covering that in your 30s, and then you start covering it later on. You don't want the youth to be able to make that same, you know, not a mistake, but you know, I would say, you know, go through that same experience. So you're doing that on your small scale, and you realize that the youth is going through issues like disconnection with the parents. Parents are having issues with the kids. They're not able to find you know, good friends or good company. They need a mentor or a guide to be able to tell them, you know, just don't make these mistakes, just don't go that particular path. It's not always about, you know, right now you just wants to go out and have fun. You know, they just want to go out and have fun. We used to do the same thing. And now if somebody tells me like, I want to go out and, you know, party, I was like, you know, like, why waste time? Because now you think in a different manner. They just want to go out and have fun. We want them to be able to have fun, you know, but not at the expense of the hereafter, and not at the expense of compromising on their future, and be able to understand that they are a huge asset to this country. Huge percentage of youth, they need guidance. They need, especially, to be able to have that inner peace. They're disturbed. They just don't have anybody to talk to. Parents don't talk about anything else except grades. ये ग्रेड क्या है, ये क्या, ये क्या, ये क्या है, ये जॉब मिली या नहीं मिली. Their focus is all about getting a good car, about good mobiles, stuff like that. And I always tell them, your identity is in what you make out of your own self, rather than having these things. These things come and go. So they need somebody to talk to. They need somebody who can believe them. And you know, as a team, we've been able to reach out on a bigger level. So I think youngsters are going through a lot of challenges. At the same time, I strongly believe, on a positive side, that they are very strong as well. They can they can do wonders compared to what the previous generation was able to do. And that's why I'm optimistic, and that's why we focus on the youngsters and feel that they can do big things. Right. So as I was talking about, you know, friendship in general, you know, how friendship plays a role. And I was thinking, you know, I told you about, you know, that certain we were doing a show and we had a lot of backlash, and, you know, we had a lot of people who putting us, you know, कि आपको ये नहीं करना चाहिए, and this and that. And, you know, at that point, I called my friend and I said, कि, you know, ठीक है, you know, I can't say something because I'm in a public eye, you know, and the institution knows me. But you know, you should be in my support, and you know, you should you know, have that follow. You know, I support his work in general and said, and people started calling me, यार देखो आपकी इमेज तो पहले ही खराब है, हम भी अपनी इमेज खराब कर ले और blacklist हो जाए. And that's the kind of impact, you know, कि I've started feeling lonely in that point, कि you know, I started feeling lonely कि I started believe कि यार मेरे पास ऐसे कोई दोस्त ही नहीं है जो मुझे support करे मेरे बुरे वक्त पे. And that was, I was talking about, you know, कि how friendship plays a role in our lives. Exactly. देखिए, when I was doing my bachelor's, so I started off with the Dialogue Society in CBM. I was the founder of that particular society. So it started with the boom, but as soon as activities started happening on a regular basis, लोगों ने जमा होना शुरू कर दिया. We used to have our own halaka in the students activity center. We would talk about a particular hadith of Bukhari, or maybe, you know, talk about whatever relationship challenges people are going and how it can end up. The management started getting a little reserved. So जब बुलाया मुझे तो मैं जाने लगा admin के पास. तो जाते जाते I think 7-8 लोग थे. But by the time I reached the admin office, I think I was alone. मैं पीछे मुड़ा तो कोई भी नहीं था. Everybody is like, मेरे grades का मसला है, मेरा मसला है. But you know, Afan, challenges are going to be there. This is where the filtering happens. Like I said, दोस्ती, everybody is going to be your friend. आपका हर कोई दोस्त होगा as long as they're having fun. साथ देने वाले बहुत कम होंगे. And this is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, that in the end times, the two things which will be difficult for you is basically dirham halal money, and akhi fillah, a brother for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, because everything is going to go away. But since Allah is going to be there forever, and Allah will never waste that friendship, and will even make it last even when you
आर गॉन इन फ्रॉम दिस दुनिया. सो दुनिया में बहुत कम दोस्त मिलेंगे साथ देने वाले. सो वैल्यू देम. मैं हमेशा ऑडियंस को बोलता हूँ कि यार उन दोस्तों को वैल्यू कीजिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं, बिकॉज गुड टाइम्स में बहुत लोग आ जाएंगे. आपका माशाल्लाह अगर पॉडकास्ट बहुत आगे पहुंच जाएगा, बहुत लोग आएंगे, बहुत ताली बजाने वाले होंगे, बट नोबडी वुड बी देयर विद यू इन दोस स्ट्रगल्स. किसको बुला लिया, क्या हो गया, ये रिस्क हो जाएगा. यू वुड बी a risk for them. So this is नेमा, a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala आपको देखने का मौका देते हैं कि कौन साथ देने वाला है, कौन नहीं है. True. Well, let's moving forward. We are talking about relationship. Parents का relationship होता है अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ होता है. Let's talk about relationship जो हमारे youth पड़ गई है. तो उस रिलेशनशिप के बारे में you have a lot of people in youth club. What do you think इस चक्कर में जब लोग पड़ जाते हैं तो what do you think कि क्या impact कर रहा है, कि क्या what do you think is the right way to do? देखिए मैं जिसकी बात कर रहा हूँ पेरेंट्स की, अपने बच्चों के साथ या बच्चों की जो प्री मैरिटल रिलेशनशिप है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करना में बहुत ज़रूरी है. कई रीजंस होते हैं. कभी कभार माँ बाप की तरफ से प्यार अटेंशन नहीं मिली हुई होती है, तो दे स्टार्ट सीकिंग समवेयर एल्स, या दे हैव बीन वाचिंग सो many shows, so they feel that vacuum in their life कि एक कोई होना चाहिए, कोई प्यार करने वाला होना चाहिए. तो प्यार करने वाला तो होता है, हम हमेशा ये बात बोलते हैं, देखिए प्यार हो जाना बुरा नहीं है, प्यार के चक्कर में जो काम होते हैं वो बुरे हैं. एंड इस्लाम हैज गिवन यू वेरी क्लियर यू बिकॉज इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारी जनरेशन वांट्स द गुड स्टफ विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे वुड वांट टू गो टू अ मूवी, they want to go for a date out on a dinner. That's all the good time, because they can easily put up a good face and the best appearance during those time. But they need to understand that relationship in terms of marriage reveal the true self of the person. Commitment क्या है. मैं तो बोलता हूँ हमेशा कि लड़कियों की abs वाला लड़का तो तुम्हें देख रहा, but how that person is going to be a good husband? Would he be able to compromise that day on the gym just because आपको जरूरत है कंपनी की, आपके बच्चों को जरूरत है, या बोलेगा छोड़ दो मैं अभी सेट लगा लूँ थोड़ा abs का, तो जना तो अभी बच्चे को रोने दो, अभी डायपर चेंज करने की जरूरत नहीं. दैट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट कम्स विद मर्सी. ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन रिलेशनशिप की बात की है. ठीक है, कि हमने आपकी रिलेशनशिप के शुरू के टाइम में एक मोहब्बत, एक्सट्रीम मोहब्बत रखी है. ठीक है, उसके बाद जो रिलेशनशिप चलाने का मामला रखा है वो मर्सी रखा है, एक दूसरे को फॉरगिव करना, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना. यहाँ पे तो होता है कि ओके फाइन 3 years 4 years, बिकॉज एक एवरेज तो 3 years का है ना. उसके बाद तो लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं. उसके बाद बोला जाता है कि बात करने के लिए कुछ नहीं है. उसके बाद बोलते हैं मेरे रिश्ते आ रहे हैं. उसके बाद बात होती है कि जना कि शायद मैं सो रही थी तो मुझे खाला जो थी वो अंगूठी पहना के चले गए, आई एम सो सॉरी. सो ये बहुत सारी होती हैं. तो पॉइंट ये कि असाइनमेंट्स तो हो गई बैचलर्स में, सब कुछ हो गया, अब तो खुदाफिज हो गया. तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि फिर वो सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ गई. फिर बोलते हैं कि मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा. फिर बोलते हैं कि जब भी मैं रिश्ता आता है मुझे शक्ल उसकी आती है. ये इस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं. बट व्हाई डिड यू इन्वेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, नोइंगली दैट ये पेरेंट्स की तरफ से भी हाँ या है ना ये या नहीं है, दोनों रिस्क ले रहे होते हैं. एंड बट द पॉइंट इज रिगार्डलेस ऑफ दीज मिस्टेक्स द यंगस्टर्स आर एक्चुअली डैमेजिंग देमसेल्व्स इमोशनली इन दिस एंटायर पीरियड. फिर उसका जो फॉलो अप होता है वो आगे की रिलेशनशिप्स में भी आता है. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी एबल टू हैव दैट रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स. अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स की खुद की जनरेशन में शायद कुछ चीज़ें नहीं मिली हैं, तो उन्होंने बोला कि इस जनरेशन को खूब दो. उन्होंने दे के किसी चीज़ में ना नहीं कहा, और एकदम से जब ना करते हैं तो बोलते हैं कि क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते, क्या आप मेरी मोहब्बत नहीं चाहते. बोलते हैं नहीं बेटा हम तुम्हारे लिए, वो फिर एक सिलसिला चलता है. एंड दिस स्ट्रगल एंड इट एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने बच्चों की जो जहनी सिक्योरिटी है ना वो देखना बहुत ज़रूरी है. राइट, इसके ऊपर और कभी बात होगी इंशाल्लाह ताला, लंबी है, इट्स एन एंटायर टॉपिक. मतलब मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि I have some relative, he just got married and he lived abroad and then he came back and he got married. He went for studies and he came back married. And and I got to know his parents knew about it. His parents we didn't had a choice and he asked us to marry. At least he asked us, so we gave him the opportunity. But what do you think जो माँ बाप नहीं देते होगे, जो बाहर पढ़ने गया है and then if he is fall in love and he wants to get married, at least that's the good thing about it. And the parents say नहीं ऐसा नहीं हो सकता, this is not possible. So what do you think that? देखिए at the end of the day जो शादी करने वाले हैं उनकी चॉइस रिलीजियसली
उसी की इंपॉर्टेंस, चाहे लड़का हो लड़की हो। बट आपने ये बात देखनी होती है। देखिए, यू आर नॉट जस्ट लिविंग योर ओन लाइफ, you're marrying two families, एक दो फैमिलीज का रिलेशनशिप होता है। कई लोग कभी कभार अपनी मोहब्बत को ले आते हैं घर पे, वालदा कभी कबूल नहीं करती, और वो एक अजीब टेंशन का जरिया बन जाता है। इन लॉन्ग टर्म वो रिलेशनशिप पे भी अफेक्ट होता है, बिकॉज देन द वाइफ स्टार्ट सेइंग योर मदर डज नॉट रिस्पेक्ट मी, वो मुझे ये नहीं करती, ये नहीं करते, एंड देन हस्बैंड और वाइफ, तो बहुत से ऐसे मामले होते हैं। देखिए, माँ बाप की रज़ा की एक अहमियत है, उसके बगैर आप शादी कर सकते हो, बट my advice would be to try to make them understand. ठीक है, at times yes they are unreasonable, yes it's not कि जना कि कभी भी हर वक्त वो जो बात करेंगे, but try to be able to convince them and try to be able to make them understand. It's not just कि आप बोले कि आप वो कपड़े यहाँ फेंके हुए होते हैं, आप जो है मम्मी नाश्ता बना दें और एक दिन आके बोले कि माँ मैं शादी करना चाहता हूँ, आज मुझे जिंदगी की मोहब्बत मिल गई है। माँ बोले कि बेटा अभी तो तुम्हें मैंने वॉशरूम जाने से खुद जाने दिया है और तुम बोल रहे हो कि जना की मोहब्बत, तो वो ट्रस्ट भी तो डेवलप करवाएं कि आप ये फैसला कर सकते हैं कि आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, या आपने खुद जो चॉइस की है वो आपने कोई मतलब ट्रस्टवर्दी चॉइस है। वरना बोलेंगे जिस तरह से जिंदगी गुजारा था शायद किसी और लड़की के हवाले हो गया, और वो शायद ये भी पार्टी करेगा, बाद में वो भी पार्टी करेगी, और हम लोग परेशान हो के आधी उम्र में बुढ़े हो जाएंगे। तो आपने ट्रस्ट गेन करना है, और उसके लिए ये बात देखनी है। देखिए, पेरेंट्स को देखना है कि बच्चों के साथ ऐसा ताल्लुक रखें दैट वो बचपने से ऐसी उनकी अपब्रिंगिंग करें कि उनको पता हो कि हमारे बच्चों की चॉइसेस में कोई ना कोई जो है ना वैलिडेशन होगी, एंड ये शुरू से की जाती है। तो शादी इतना ज़िंदगी का मामला है, और हमारे पास सारी चॉइसेस करने देते हैं सिवाय शादी के। तो उस वक्त जो है वो बिठा देते हैं, बोलते हैं सरप्राइज, वो बर्थडे सरप्राइज होते हैं ना, यहाँ पे होता है मंगनी सरप्राइज, ये सरप्राइज है आप लोगों को, आपकी मंगनी हो गई। ठीक है, चलिए जी। आपके साथ ऐसे हुआ था? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ था मेरे साथ। बट एक और हम जब हम बात कर रहे हैं एक है, हम बात करते हैं रिलेशनशिप इन जनरल, तो लेट्स टॉक रिलेशनशिप इन टॉक्सिकेशन जो लोगों के है। वी सी अ लॉट ऑफ न्यूज़ कमिंग आउट, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस अक्रॉस पाकिस्तान के इस चक्कर में लोग पड़ गए, कि इस नशे के चक्कर में, एंड हाउ इंटॉक्सिकेशन हेल्प। एंड आई सेड एंड आई फील एंड आई बिलीव कि जो इंसान के अंदर की वीरानी होती है ना, वो उसे नशों में ले जाती है। तो आपका क्या इंटेक है, ऑल दीज पीपल, यूथ इन पर्टिकुलर, इस नए अलग अलग किस्म के नशे आ रहे हैं अब तो। देखिए, द आइडिया ऑफ somebody becoming an alcoholic or getting into drugs, they want to be away from reality. It allows them to be able to be away from reality. देखिए, we become a dopamine society, dopamine feeding society. हम मोबाइल खोलते हैं तो हमारे ब्रेन में जो डोपामीन है उसको फीड किया जा रहा है। तो हम उस डोपामीन को फीड करने के जब आदी हो जाते हैं ना, और जब हमें उस सोसाइटी से वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे होते कि आई नीड मोर फीड फॉर इट, they just go for these kind of unrealistic dopamine feeding things, and then they get hooked to it, because we have not taught our younger generation to be able to control their wants and desires. Society इनको बार बार बम्बार्ड कर रही है, तुम सब चाहे कर सकते हो, तुम ये भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, तुम्हारी जिंदगी के फ्यूचर। मोटिवेशन स्पीकर्स ने बोला यस यू मोटिवेटेड, तुम मोटिवेटेड हो, बोला यस मोटिवेटेड, आगे करूं, आई डोंट नो, मैं तो मोटिवेट करने के लिए आया था खाली। तो वो मोटिवेट करा के चले जाते हैं, बोलते हैं मैं करूं तो क्या करूं, तो बोलते हैं कि डायरेक्शन नहीं है, क्या करें। बोलते हैं जब मैं नहीं पा रहा अपनी जिंदगी में कोई मीनिंग, देन कहीं से तो मैं अपने आप को सुकून हासिल करूं। दे वांट टू बी अवे फ्रॉम रियलिटी। अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ थिंग्स प्ले इट्स पार्ट। पेरेंट्स की अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस, दोस्तों का धोखा, मोहब्बत का धोखा, फला धोखा, और एट टाइम्स दे जस्ट बी इन द रॉन्ग कंपनी, ट्राइंग टू बी कूल, एंड दे जस्ट एंड अप literally being cool because of that intoxication. So we need to understand कि देखिए drug is an issue, and for that reason हमने president of Pakistan को भी approach की थी, because उनके पोते हमारे पास classes में आते थे। So we found that as good opportunity कि हम president of Pakistan के पास approach करें और बोलें that we want to be able to go out as an organization to all those different universities, be able to counsel students, help them out इन दिस बेसिक एडिक्शन प्रॉब्लम। हमारे पास AIG के साथ हमारी बात हुई है ट्रैफिक की, कि हमने बोला कि हमें अप्रोच करना है। लाहौर में वी बीन एबल टू हैव एन एंटायर सेशन विद द पुलिस फोर्सेज, टेल देम अबाउट हलाल इनकम, इंपॉर्टेंस ऑफ इट इन बरका, एट द सेम टाइम यंगर जनरेशन की इंपॉर्टेंस। वी बी प्लानिंग टू डू दिस ओवर इन कराची एज वेल। सो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक आई सेड, देखिए आई वॉज टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल, and not to be able to let it out, but all kind of company, 4 बजे 5 बजे की पार्टीज, और हम लोग का हर तरह की गैदरिंग होती थी। मुझे पता है कि इसमें सुकून नहीं है। जब रब ने कह दिया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के तुम्हें नहीं मिलेगा सुकून सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद के अलावा, जो हम कहीं और थक जाएंगे।
we don't want our younger generation to be able to make that mistake, because we want this country to go ahead. We want this younger generation to be able to, be able to prove to the entire world that there's a lot of potential over here. So we need to play our part. Baki Allah Malik hai. Right, because मैं अपनी यूनिवर्सिटी आता हूँ, IBA does not have a smoking area in general, and यहाँ लोग स्मोकिंग करने के लिए लोग बाहर जाते हैं और कैंपस के बाहर जाते हैं और कैंपस के एंट्रेंस में खड़े होकर करते हैं. एंड मैं जब देखता हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी आता था प्री कोविड टाइम्स, आई यूज्ड टू सी कि यार सो मेनी पीपल स्टैंडिंग डाउन एंड स्मोकिंग. पता नहीं वो दिखने में तो स्मोकिंग, पता नहीं क्या क्या ले रहे हो. आई एम नॉट पुटिंग फिंगर्स आउट देयर, बट आई एम सेइंग कि यार एक माँ बाप, मैं अपने बच्चों को वहाँ छोड़ने जा रहा हूँ, एंड आई सी ऑल दीज पीपल स्मोकिंग आउट देयर एट द एंट्रेंस. मतलब लाइक आई विल फील इंटेम्प्टेड यार कि ये हो क्या रहा है इस इंस्टीट्यूट के बाहर. और सपोज कोई बाहर वाला हो तो वो क्या सोचता होगा यूनिवर्सिटी के बारे में कि ऑल दीज पीपल आर स्मोकिंग outside this entrance. So what do you think? देखिए, same thing we used to face in our college. CBM में हम लोग जब होते थे तो वहाँ पे नहीं होता था, तो कोई वॉशरूम में छुप के पी रहा है. और जैसे एक दोस्तों का वाकया हुआ कि वो एक ही वॉशरूम बंद थे, गार्ड ढूंढता है कि कहीं स्मेल आ रही है तो नॉक करे, बाहर नहीं निकल रहे, कहीं ना कहीं से बच गए. कहीं एक बॉयज़ कॉमन रूम दिया छोटा सा, तो जब दरवाज़ा खुला तो एक हॉट बॉक्स बना हुआ था, तो उन्होंने कहीं कंप्लीटली बैन करने की कोशिश की, बाहर जाने नहीं देते. आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके बहुत नुकसानात हैं. आप थोड़ी सी जगह देंगे, वो सारे दोस्ती यारी करके एक जगह बम्बल बी की तरह बैठ जाएंगे और जो है ना वहाँ पे सिगरेट करेंगे, बोले सिगरेट है, बाहर कोई नहीं भी होगा तो कोई ना कोई देने का हो जाता है. आई थिंक it's a very bad habit, and it has its जो इसके consequences हैं, and we need to be able to tell and educate, and I think यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेशंस कराएं ताकि लोगों को बताएं, हार्मफुल इफेक्ट्स, पर्सनल काउंसलिंग करें, इनको बताएं. देखिए, खाली आप जब रिस्ट्रिक्शन डाल देते तो कुछ हद तक तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्क्वीज आउट होकर निकलता ज़रूर है. तो आपने एक जगह दे दी तो वो सारे वहीं पे जमा होंगे और फिर आके बोलेंगे पता नहीं IB में नशे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या हो रहा है. ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो हमें बताना ज़रूरी है. देखिए, एक जो ये रिलीफ का एक हमने एक बहुत ही नेगेटिव दरवाज़ा खोला हुआ है ना. हमने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नहीं लगवाया, हमने कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं करवाई, हमने बता दिया कि तुमने जाके बस कॉर्पोरेट कल्चर में बनना है और ये करना है, और इन 4 साल के बैचलर्स में तुमने बस यही फोकस रखना है. वी नीड टू बी एबल टू वर्क ऑन देयर हेल्दी माइंड एज वेल, बिकॉज आप अगर एक 4 साल में एक ऐसा प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे IBA में मेरी बहन ने भी पढ़ा है, तो कहते थे वी द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, बट एक्चुअली द विप्ड क्रीम, द विप्ड क्रीम. ठीक है, तो बोलते हैं कि आप क्या इंडिविजुअल बाहर निकाल रहे हो, वो साइकोलॉजिकली क्या होगा. मतलब माई सिस्टर इज ग्लोबल ब्रांड मैनेजर ऑफ वन ऑफ द टॉप मल्टीनेशनल्स इन USA. सो वो बताती है ना कि यहाँ पे थी तो बिल्कुल लाइफ ही नहीं होती थी, एंड वहाँ पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइफ ही नहीं होती थी. तो आप एज इंडिविजुअल क्या होगे, मतलब क्या आपका अपने वालिद के साथ, वालदा के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ कनेक्टिविटी और एक पॉजिटिविटी को ट्रांसफर करने का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? इज इट जस्ट दैट यू जस्ट ओके फाइन, आज ब्रांड मैनेजर बन गए, आज ये बन गए, आज वो हो गया, ठीक है. दिस इज, आई एम नॉट, मैं नहीं कह रहा, नेगेट कर रहा हूँ, बट दिस इज नॉट व्हाट इट्स ऑल अबाउट. There's so many things that you can carry forward if your passion was involved in it. Maybe you could have taken travel as something. But आप 4 साल में एक ऐसा अजीब सा वो ज़ॉम्बी ना निकाल दें कि जिन्हें कि बंदा बोले कि ठीक है काम करना है और टाइट करना है, नहीं नट टाइट करना है. It has to be an individual making a difference in the society, happy people. That's why न्यूजीलैंड और इन सब देखिए उन्होंने टाइम ऑफ लिया, लेस वर्किंग डेज, सबसे ज़्यादा खुश थे लोग इस पेंडेमिक में ऑनलाइन घर से काम करने में. ठीक है, बट ये यू नीड टू बी एबल टू मेक पीसफुल इंडिविजुअल्स सो दैट सोसाइटी इज पीसफुल. हर कोई रोड पे डिस्टर्ब नजर आता है, आप देखें रोड पे परेशान है, रिक्शे वाला भी परेशान है, मर्सिडीज वाला भी परेशान है कि वो परेशान है कोई स्क्रैच ना मार दे. एवरीबडी इज वरीड. क्या होगा सोसाइटी. साइकोलॉजिकली पीस देना हमें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये हमारे फ्यूचर है. तो आपने अपनी बताया कि आपकी बहन ग्लोबल ब्रांड मैनेजर है, तो व्हाई डिडंट यू परस्यू, यू हैव अ ह्यूज एकेडमिक. एग्जैक्टली द रीजन व्हाई, बिकॉज देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ. ब्रूस ली की कहावत है, द की टू इमॉर्टैलिटी इज लिविंग अ लाइफ वर्थ रिमेंबरिंग. आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप मी करें और बोलें कि ठीक है मेरे लिए एसोसिएशन थी, हम हर लिहाज से एक डिग्री पे रहते हैं ना, मैं हार्वर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, एक एसोसिएशन है, ठीक है, इनका हो एक वैल्यू एक अलग है, पर मैं इससे ही हूँ, मेरे पास ये ब्रांड है, मेरे पास वो चीज़ है. आपने मैं किया और मर गए, कब्र में चले गए, सब कुछ भी नहीं लेके गए. बट यू लिव अ लाइफ फॉर योर सेल्फ, फॉर पीपल अराउंड यू, you live them up, you work on with the society gives you back, they remember you even when you're gone. That's the immortality. You live a meaningful life, you live beyond yourself, you work towards correcting the society. You jump, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले क्या दुआ की थी
कि या अल्लाह मेरे औलाद को नमाज का पाबंद बनाना। Hmm. जो मौसलोस हायरार्की में था ना कि द बेसिक नीड्स उल्टा था कि अपना की बजाय उन्होंने बोला था कि नमाज का बनाना अल्लाह ताला रिस्क का वैसी बंदोबस्त करेगा। अल्लाह ताला ने ज़मीन से निकाल दिया। आप सोसाइटी के लिए करें, आप सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह सुब्हान ताला के लिए करें। अल्लाह विल नेवर लेट यू डाई। अल्लाह ने अपने बंदों को नहीं कभी ज़ाया किया। एंड दैट्स व्हाट वी वांट, राइट? दैट्स व्हाई आदम अलैहि सलाम ही वांटेड इमॉर्टैलिटी, दैट्स व्हाई ही वाज मेड टू गो नियर द ट्री। एंड यू नो इवन व्हेन यू गॉन, आपका काम, आपका सदका जारिया चलता रहे। So that at the end of the day we're looking for that ultimate happiness. And जब आपकी happiness ये हो जाए कि आप किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी यतीम के साथ आप कुछ कर दें, किसी को आप डायरेक्शन दे दें, किसी को जिंदगी का मकसद दे दें, तो इससे बड़ी आपके लिए क्या बात हो सकती है? Right, so we covered a lot of topics in our interview. आपको ऐसा कोई टॉपिक लगता है जो हमने कोई मिस कर दिया तो आप उस पर डिस्कस करना चाहते हैं? I think one thing we need to be able to understand that just because people talk about religion, ऐसा ना हो कि लोग डर जाएं, ओ माय गॉड इसको बंद करो, ऐसा ना हो कि जो ना कि हमारे पास अभी वो हो जाए। वी नीड, बिकॉज देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिलीजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और उसको जस्ट बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ फ्यू पीपल, हमें नहीं इस बात का डरना है कि दूसरे जो है उनको भी काम करना रोक दें। आपको रिलीजन बहुत एक सुकून का जरिया देता है। आपने पॉजिटिविटी, आपने लोगों को गाइडेंस, आपने लोगों को एक मकसद, आपने उनको एक होलिस्टिक व्यू देना है जिंदगी का, ये एक छोटी सी व्यू से हटकर, एंड रिलीजन गिव्स दैट। एंड अगर आप उसको अच्छे अंदाज से नहीं प्रोजेक्ट करेंगे और लोगों को नहीं बुलाएंगे, दैट इज द रीजन व्हाई यूथ क्लब वर्क्स इन ब्रेकिंग दैट स्टीरियोटाइप। ठीक है, कि वो जरूरी नहीं कि वो टर्बन पहन के आपके पास आएगा, वो आएगा, बात वही करेगा, एंड ऑथेंटिक नॉलेज जो पढ़े हुए हैं उलमा से वो आएंगे यूनिवर्सिटी। बिकॉज देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी भी कबीले के पास जाते हैं उनसे उन्हीं की ज़बान में, अंदाज में बयान कर, ज़बान से मतलब डायलैक्ट से बात करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान बोला कि हमने भी जो अंबिया भेजे उन्हीं के बीच में भेजे, उन्हीं की ज़बान में बात करने वाले। रिलेटेबिलिटी इन यंगस्टर्स को रिलेटेबिलिटी चाहिए रिलीजन में आना और उसको प्रैक्टिस करना, ताकि उनकी अपनी इंडिविजुअल ज़िंदगी बेहतर हो और उनकी पब्लिक ज़िंदगी बेहतर हो। तो ये आपने प्रमोट करना है। वर्कशॉप्स करवाइए, अच्छी तरीके से सेशंस ऑर्गेनाइज करवाइए, स्पीकर्स बुलाइए, लोगों को एजुकेट करवाइए, सो दैट आप जो इन मसाइल से बच्चों को देखते हुए गुजरते हैं उनको पता चले कि इनकी असल कामयाबी इसमें नहीं है, इनकी कामयाबी असल में किसी और चीज़ में है। So I wanted to ask you the last thing about K, if you go back in time, like what would you think you would have changed about yourself or your work, or anything that you want to change? I would say people who are whiners are always whining. I am the way I think is because whatever mistakes I made or whatever happened in my past, I wouldn't change a thing, except for the fact that I would say I should have started learning earlier माई रिलीजन। ठीक है, मैंने पहले से उलमा से पढ़ना शुरू कर दिया होता, बिकॉज जाहिर बात है हमारी कोई बैकग्राउंड नहीं थी, आई डिड नॉट कम फ्रॉम प्रैक्टिसिंग, बट वट एवर हैपेंड, वट एवर वाली बात ही नहीं है, कदर अल्लाह और माशा फ़अला, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो किया जिस वजह से किया। सो अब यह है कि पीपल हु लुक बैक are too focused on looking in the back. People who look in the future are too filling themselves with expectations. Present को बेहतर बनाइए, आगे का सोचते हुए कि आगे किस तरह से कदम रखेंगे, एंड इंशाल्लाह ताला पीछे जो हो गया वो हो गया, आगे की इंशाल्लाह ताला बेहतर करनी है। Right. So at the end we have this rapid fire round for you. We want to ask you about. So one word, youth club. Positivity. Relationship. Healthiness. Love. Growth. Intoxication. Ya nasha. The poison. Acha. Life. Happiness. IB today. Positivity again. Okay, that's great. Having you here, I had a lovely conversation. I really enjoyed the whole part, because this was the first episode I couldn't, you kept on making me laugh. I really enjoyed it, particularly, to be honest. That's the problem with having a host on your show, बहुत बोलते हो. Agreed, to be honest, I learned a lot, to be honest. You kept engaging, and throughout the conversation, and that's, I personally learned a lot, and I hope all of you who are watching, you learned as well. And thank you for watching, and thank you, Mr. Wajiuddin, for having. It was my pleasure. So, see you in the next episode. Allah Hafiz.